Welcome to our channel English Made Easy for All। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आर्टिकल, द यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द, उनके बेस्ड हमने रूल्स देखे थे। यदि समहाउ आप उस वीडियो को मिस कर गए हैं तो आप ज़रूर उस वीडियो को एक बार जा कर के देखें। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, मीन्स आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करना है, और एक दूसरा टॉपिक और लेंगे जिसमें हम लोग ये बात करेंगे रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल, कि आर्टिकल का प्रयोग एक सेंटेंस में 2 बार यदि होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, और एक बार होता है तो उसका अर्थ क्या होता है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसको जानने के लिए आज का वीडियो ज़रूर देखें, और इस तरह के हम और बहुत सारे वीडियोस ला रहे हैं जो आपके लिए इंग्लिश को बहुत ही आसान बनाने वाला है, खास करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश मेड इजी फॉर ऑल। इन दिस सीरीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था वेयर टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द, indefinite articles a and an, and based on these two type of articles हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स फॉलो किए थे, रूल्स कंसीडर किए थे कि वेयर टू यूज, बिकॉज in the examination it is observed, it is noticed कि there are the question directly asked कि इस particular जगह पर क्या आर्टिकल भरा जाएगा। So if you are through with those topics, those rules, you will find it's easy, you will find that it becomes very easy to get the solution. Now in today's topic we are going to discuss about कि हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, because it is a human tendency, या आप कह सकते हो most of the students use these articles knowingly or unknowingly at those places where it is not required. So it is equally important for us to also know this topic, to know more about this topic, where not to use the article. So the topic of the today is omission of the article. We will go through certain number of examples with the rules कि कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। So out of that set हमारा जो पहला केस है वो है that is concerned with before the names of substance and abstract noun, and particularly if it is an uncountable noun and it is used in the general sense, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। We will not use before the name of the substance and the abstract noun if it is a uncountable. For example, sugar, it is a substance. Sugar is bad for your health. So we never use a sugar or the sugar is bad for your health, because sugar is used here as a substance. Similarly, gold is a precious metal. So again, gold is a substance or material noun, so we should not use any type of the article. Now take the example of the abstract noun, wisdom, honesty,
So whenever you are using an abstract noun and that is a uncountable, ध्यान दीजिएगा, uncountable, we will not use any article with the these kind of the abstract noun. So this is the first set of rule. Now the second rule says that before plural countable noun, if they are used in a general sense, जैसे आपने बात किया कि बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, सो यू आर टॉकिंग अबाउट बच्चे, दैट इज अ प्लूरल in general. So we'll write children like chocolate. We will not write the children like chocolate because we are talking in general कि सारे बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं. Similarly, computers are used in many office or in all offices. इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर्स इन जनरल सारे ऑफिसेज में यूज होते हैं. तो वी आर नॉट राइटिंग हियर द कंप्यूटर्स. थर्ड रूल, बिफोर द नेम ऑफ द मील्स. जनरली हम इंडियन स्टाइल में 3 मील यूज करते हैं. ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है. सो वेन एवर यू आर टॉकिंग ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, we should not use any article with them, but there is a exception. What is that exception? He will use a when there is a adjective before these meals. जैसे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था, अच्छा, लजीज. When you are using these words in Hindi, so there is a word in English also for the same. So that is your adjective. तो जब आप कोई adjective use कर रहे हो इनके पहले, meals के पहले, then we will go with a article a or the also when it is specified. For example, I had a लंच टुडे इज रॉन्ग, क्योंकि लंच अकेला आया है तो इसके साथ ए नहीं लगेगा. लेकिन यहां पर यदि हम ये बोल रहे हैं आई हैड लेट लंच टुडे, तो लेट इज एन एडजेक्टिव, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे. सो द एग्जाम्पल विल बिकम लाइक दिस, आई हैड लेट लंच टुडे. अगेन जस्ट सी द अदर यूज. The dinner we had at the particular place or the hotel was very nice. Now you are talking about a particular dinner, a specific dinner. So instead of using a or an, what we have used? We have used a definite article the. So these are the exceptions with the rule number 3. The next rule talks about before language. So if you take the example of any language, English, हिंदी, पंजाबी, जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, यूज करते हैं, इन सारे लैंग्वेजेस के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. जैसे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, वी नेवर यूज द इंग्लिश, ए इंग्लिश. अगेन वी स्पीक पंजाबी एट होम. Again, you see, in this example, we haven't used any kind of the article before the language. Next rule talks about building and the place. School, college, university, church, bed, hospital, prison. ये जिस पर्पज के लिए प्लेसेस हैं, यदि उस पर्पज से ये विजिट किए जा रहे हैं, जो भी इनका प्राइमरी पर्पज है, चर्च है प्रे के लिए, हॉस्पिटल है, you are going for medicine or you are going for the consultancy, you are going university to study something, तो ये इनका पर्पज है और फॉर दैट पर्पज ये चीजें हैं. तो जिस पर्पज के लिए बनाए गए हैं और उसी पर्पज के संदर्भ में वो सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, देन वी डोंट यूज एनी आर्टिकल विथ इट. सो फॉर एग्जाम्पल, आई लर्न फ्रेंच, इंग्लिश, व्हाटएवर एट स्कूल, नॉट एट द स्कूल. एक स्टूडेंट स्कूल जाता है,
तो स्टूडेंट गोज टू स्कूल, स्टूडेंट गोज टू द स्कूल कभी नहीं होगा. वी नेवर यूज द विद द स्कूल इफ स्टूडेंट है, टीचर है, प्रिंसिपल है, बिकॉज दे आर विजिटिंग फॉर देयर पर्पज and the purpose is related to the school. Similarly, in the next example we have written, we go to church on Sunday. What is the purpose of church? To pray. On Sundays या Sundays को हम क्या करते हैं? Praise करने के लिए जा रहे हैं. So we have not used any article before the church. Now exception is there. This is used with those words. The is used with these words जब उनका प्रयोग, इस प्लेस का प्रयोग जिस पर्पज के लिए है, other than that purpose is going to meet out over there. हम जैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं किसी से मिलने, हॉस्पिटल हम क्या करने जा रहे हैं? व्हाट इज द माई पर्पज? टू मीट समबडी. सो व्हाट आई विल राइट हियर? विल यूज द हॉस्पिटल. आई मेट हिम एट द चर्च. इन दिस एग्जाम्पल आप उससे चर्च में मिले, प्रे करने नहीं गए थे, मिले. दैट इज वाई द इज यूज विद द चर्च. मैं अपने रिलेटिव से मिलने हॉस्पिटल गया. आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई रिलेटिव. सो अगेन यहां पर द आया है बिफोर द हॉस्पिटल. सो वन हैज टू टेक केयर ऑफ इट. बिफोर द next example, next set of rule talks about before the name of the relations like father, mother, brother, sister, uncle, इनके साथ भी we don't use any type of the article. जैसे mother has returned from work, father is going to take us to Disneyland, aunt promised to make sweet dishes for us. So in these three sentences we have used the relation, and all these three relation, mother, father or the aunt, has been not taken any kind of the article. Next set of rule is talking about with the most proper noun. जितने भी प्रॉपर नाउन हैं उनके साथ आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे. जैसे कोई भी नाम है, कोई कंट्री का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, सो वी डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ द आर्टिकल विथ इट. सिमिलरली नेम ऑफ द जितने भी माउंटेन्स हैं, नॉट रेंज, उनके साथ होता है द हिमालय, द आल्प्स. ये हमने पीछे पढ़ा था, पीछे के वीडियो में देखा था. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द पीक ऑफ दीज रेंजेस, जैसे माउंट एवरेस्ट में बहुत सारी पीक हैं, K2 है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे पीक हैं. तो किसी एक पीक का नाम आप लेते हो तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल द माउंट एवरेस्ट, गालात, इट शुड बी माउंट एवरेस्ट. नेक्स्ट, नेम ऑफ द स्ट्रीट्स. आपके शहर में बहुत सारे फेमस रोड होते हैं जिनका नाम होता है, तो उनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. जैसे महात्मा गांधी रोड, मोस्ट ऑफ द सिटी, जितने भी बड़े शहर में है एक रोड तो आपको महात्मा गांधी रोड मिलेगा. MG रोड, नेवर से द MG रोड, चाहे वो कितना भी फेमस हो, इस महात्मा गांधी रोड. सो विद द रोड और द स्ट्रीट्स वी डू नॉट टेक एनी आर्टिकल. नेक्स्ट, नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक. संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो ये 7 हैं, इनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. नेम ऑफ द मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विद द नेम ऑफ द month or the year. Now
जो अगले दो रूल्स हैं वो थोड़े हट के हैं। द नेक्स्ट रूल इज टॉकिंग अबाउट कि ये देयर आर सर्टेन फ्रेजेज जो दो चीज़ों से बने हैं। उनका स्टार्टिंग में एक प्रीपोजिशन होता है और उसके बाद एक नाउन आता है। तो जब इस तरह का सीरीज आपको या इस तरह के फ्रेजेस मिले तो उनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन फुट, at school, from top to bottom, at home, in bed. So many other examples will be there. So when there is a preposition followed by a noun and it is a phrase, do not use any article. For example, he is in the depth is wrong. He is in depth. तो डेप्थ के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसके पहले इन आया है, दैट इज ए प्रीपोजिशनल फ्रेज. सो व्हेन यू आर यूजिंग ए प्रीपोजिशनल फ्रेज with a structure preposition plus noun, we avoid article. Next rule talks about certain phrases which are consisting of a transitive verb. There is a transitive verb and there is a object with it. तो उनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. जैसे give ear, set sail, take heart, send word, catch fire, take offense, leave office, leave home. Now in these phrases you find there is a transitive verb followed by an object. In these circumstances, in these with these words we do not use any article. जैसे he left home in the morning. left home हो या हाउस हो, इनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. he took offense, he took an offense नहीं, he took the offense नहीं, he took offense because that is a one phrase. so इन दोनों के बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. so these are the set of rules where we were talking कि आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है. similarly before the noun जो काइंड ऑफ के साथ है, जैसे काइंड ऑफ ए फ्लावर नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लावर. Now the important concept of the article is incomplete, or the knowledge of the article is incomplete if you do not talk about this topic, that is repetition of the article. You will find in a sentence कि यदि आर्टिकल दो बार आ जाएगा तो सेंटेंस में इट मेक्स अ डिफरेंट सेंस. एक बार आ रहा है इट मेक्स अदर सेंस. सो जस्ट बी फोकस. अंडर दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल. नाउ विल सी दैट if I say I have a black and a white dog, I have a black and white dog, just see the use of the article. It is only with the one of the adjective, that is the black. It is not used with the white. जबकि नाउन एक ही है, वो डॉग एक ही है, डॉग नाउन एक है, लेकिन जो एडजेक्टिव है वो दो जगह यूज हुआ है और आर्टिकल केवल एक एडजेक्टिव के साथ आया है. इसका मतलब दो नाउन नहीं है. इट मेक्स वेरी क्लियर, एक नाउन है और उसके दो एडजेक्टिव हैं. डॉग ब्लैक भी है और एज वेल एज व्हाइट है. दैट मीन्स द डॉग इज पार्शियली ब्लैक एज वेल एज पार्शियली व्हाइट, बट नाउन इज वन सिंगुलर. सो आपने क्या यूज किया? Use a only once in this sentence. But if you say I have a black and
ए वाइट डॉग, इसका मतलब मेरे पास दो कुत्ते हैं, एक का कलर वाइट है और दूसरे का कलर ब्लैक है। सो जस्ट सी द डिफरेंस कि यदि आपने रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल कर दिया तो मीनिंग आपकी चेंज हो जाएगी इन ए सेंटेंस। एक और सेंटेंस आप देखिए, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर is absent. Again, see the use of article the. It is used with the single noun, that is secretary. It is not used with the treasurer. That means there is a one person या single noun है जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है, एंड दैट इज वाई जो वर्ब यूज किया गया है इज यूज किया गया है। यदि यहां पर कुछ ऐसे होता द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, इसका मतलब दो व्यक्ति हैं, सेक्रेटरी अलग है और ट्रेजरर अलग है, उस केस में इज की जगह पर आर होता। जैसे इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट। So take care of this topic, that is the repetition of the article, how it is changing the meaning of the sentence. Now in the next example, John was a great orator and a statesman. Again in this example it makes you clear कि John जो है, क्योंकि आपने सिंगल आर्टिकल यूज किया है, दैट इज विद द ओरेटर पार्ट, नॉट विद द स्टेट्समैन पार्ट, सो इट मेक्स ए सेंस कि जॉन दो चीजें या दो क्वालिटी प्रोसेस करता है, इज ए ग्रेट ऑरेटर एज वेल एज ए स्टेट्समैन। नाउ देयर आर ऑन द कमिटी, देयर आर ऑन द कमिटी among other a great economist and a great lawyer. यहां इस एग्जाम्पल में कमिटी में दो तरह के लोगों की बात कर रहा है, एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट की भी और दूसरा नाउन ए ग्रेट लॉयर की। सो दैट्स मेक्स द डिफरेंस व्हेन यू आर रिपीटिंग ए आर्टिकल इन ए सेंटेंस। नाउ इन दिस एग्जाम्पल अगेन विल ट्राई टू मेक यू मोर क्लियर द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। इसका मतलब ये हुआ कि आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट चैप्टर, द थर्ड एज वेल एज आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ चैप्टर, लेकिन दोनों को एक साथ लिखना होगा। तो जस्ट सी द चेंज इन द पार्ट, द थर्ड एंड द फोर्थ। आपने क्या चेंज किया? आपने चैप्टर को प्लूरल बना दिया। So that's another way to write the same thing. Now, in expressing a comparison, if two nouns refer to the same person or the thing, the article is used before the first noun only. That is what we discuss, and that's a thing कि यदि किसी एक्सप्रेशन ऑफ कंपैरिजन की हम बात करें, तो यदि दो नाउन एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कंपैरिजन किए जा रहे हैं, तो हम आर्टिकल केवल पहले वाले के साथ यूज करेंगे, न कि दूसरे वाले के साथ। सो ही इज ए बेटर मैकेनिक दैन क्लर्क। यहां पर वी हैव यूज्ड article A only before for the mechanic, not for the clerk. तो वो एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है कि वह एक बेटर मैकेनिक है, किससे? क्लर्क से। बट इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल ही इज ए बेटर पोएट दैन नॉवेलिस्ट। वो काम दोनों करता है, he is a poet as well as he is a novelist also, but कंपैरिजन किया गया तो हमने ए का प्रयोग
जो बेहतर वाला है उस बेटर वाले के पहले लगाया। ही इज ए बेटर पोएट देन ए नॉवलिस्ट। ए नॉवलिस्ट लिखने का मतलब कोई और व्यक्ति हो जाता। ही इज ए बेटर थिंकर देन डिबेटर। ए डिबेटर यदि हम कर देते मतलब किसी और से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। In these all examples, what we are talking about the two qualities of one person. जो बेटर है उसके साथ हमने ए लगाया, और जो उसमें थोड़ा इंफीरियर है या कम है, जिसको हम कंपैरेटिव के सेकंड पार्ट में रख रहे हैं, उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। Now in this part, if they refer to different persons, that's what I was talking earlier, कि if they are talking the different person or things, article must be used with each nouns. जैसे he is a better mechanic than a clerk. So I'm not talking about one person having both the quality. What I am talking कि वो एक बेटर मैकेनिक है किसी और क्लर्क से या एक क्लर्क से। तो दोनों यहां पर दो डिफरेंट नाउन का कंपैरिजन हो रहा है। प्रीवियस एग्जांपल्स में नाउन एक ही था लेकिन उसकी दो क्वालिटी की बात हो रही है। सो जस्ट टेक केयर व्हाइल यू आर रिपीटिंग ए आर्टिकल इन वन सेंटेंस। आई होप this has made you very clear कि कहाँ हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है और कहाँ नहीं करना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही नेचुरल असाइनमेंट्स लेकर के आएंगे, जिन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।